تو خبرن ہند تفصیل زاننے برہ اخ نظر چن خاص خبرن پہ 6 جنوری چہ تقریب پیش نظر جموں کشمیر مز سیکورٹی سخت جائے فورسز اہلکارن ہند خصوصی ناکہ تلاشی ہن پتہ لوکن برہ پکنک اجازت وادی ہند ضلع ہیڈ کوارٹرن پہ فل ڈریس ریل سیل پروگرامن ہند سانز بخشی سٹیڈیم سری نگرس مز انتظامی کے ذمہ داروں فنکاروں تو مقامی لوکو تقریب مز شرکت جوم صوبس مز تہ فل ڈریس ریل سیل پروگرامن ہند سانز مولانا آزاد سٹیڈیم جومس مز ساروی کھوتہ بڑ تقریب ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل 6 جنوری تقریب مد نظر تھوت یہ جموں کشمیر مز سیکورٹی ہند سخت بندوبست کرنے آمت تت وادی مز تہ امہ حوالہ سخت بندوبست کرنے آمت یتھ دوران فورسز اہلکاروں طرف خصوصی ناک لاگنے آمت وادی ہند ضلع کۄلگوم اننت ناگ پلووم شوپیان گاندربل بڈگوم بنڈپور ورمل تو کپوارس مز یہ ضلع ہیڈ کوارٹرن کن ین گژھن واجنین وتن پہ فورسز اہلکاروں طرف خصوصی ناک لگت لوکن ہز تلاشی ہین تت شہر سری نگر کس لال چوک تو بٹمالنہ سان دومین علاقن مز تہ فورسز اہلکاروں طرف جائے خصوصی ناک لاگنہ آمت یل زن شہرس مز داخل سپدنس دوران گاڑین ہز تلاشی ہینس علاوہ وتہ پکوینین ہند شناختی کارڈ چیک کرنے پتہ تمن برہ پکنک اجازت دن Security reviews and security arrangements are well in place, even in Srinagar and adjoining districts, out districts also, and we have coordinated with other forces also. The security grid is vigilant and active. Any sorts of restrictions towards the internet or mobile has been so many couple of years this has been happening? As such now I do not think so there would be such kind of situation, and since it's 26 January everyone is invited and they can come freely to this place to take part in celebrations. Did you want every person participating this year? Yes, people would be participating. Last time 15 August ہوا تھا کافی جوش خروش سے منایا گیا تھا اس حساب سے وہی ایکسپیکٹیشن اس وقت ہے کہ کراؤڈ بہت ہوگا اس حوالے سے کس طرح کی ارینجمنٹس اور کس طرح کی فیسلٹیز رہے گی تاکہ عام لوگ اس دن کی امپورٹنس کو دیکھیں. اس دن جو سیکیورٹی ارینجمنٹس کافی پختہ ہیں اور اس میں ایسی ہدایتیں بخشی گئی ہیں کہ عوام الناس کو جو کہ یہاں پہ شرکت کرنے آئیں گی پروگرام میں اس میں ان کو کسی بھی پرکار کی کوئی تکلیف نہ ہو اور کافی انسٹرکشنز ہے تاکہ وہ اسموتھلی وینیو پہ آ کر اس سیلیبریشن کا پارٹ بن سکے. اس دن پہ کوئی پولیس ہمیشہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا رہی تھی جب بھی پولیس کو دیکھا گیا ہمیشہ اسٹینڈ میں رہی ہے کسی بھی سچویشن اس طریقے کی سچویشنز ہم ہمیشہ اسکین کرتے رہتے ہیں اور جموں کشمیر پولیس پرعزم ہے ایسی چیزوں کو ریفیوٹ کرنے میں اور ان چیزوں کو. 6 جنوری تقریب مد نظر تھوت یہ آز پریت ضلع ہیڈ کوارٹرس پہ فل ڈریس ریل سیل پروگرامن ہند سانز کرنا آو تت سپز ساروی کھوت بڑ تقریب بخشی سٹیڈیم سری نگرس مز یہ صوبائی کمشنر کشمیر IGP کشمیر ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگر CRPF تو دویمو ذمہ دارو علاوہ فنکارو طالب علمو تو دویمو لوکو شرکت کر. ات موقع پہ یہ صوبائی کمشنر کشمیرن مارچ پاسٹس پہ سلامی رٹ تت فنکارو تو طالب علمو طرف رنگا رنگ پروگرام تہ پیش کرنا آمت یپر وادی ہزن دویمین جائن یمن مز کپوور ورمل بنڈپور بڈگوم گاندربل پلووم شوپیان اننت ناگ تو ضلع کۄلگوم شامل آز فل ڈریس ریل سیل پروگرامن ہند سانز کرنا آمت یمن مز انتظامی کے افسروں فورسز اہلکاروں فنکاروں طالب علموں تو مقامی لوکو شرکت کرت 6 جنوری تقریب خوش اسلوبی سان انجام دن باپت تیارین ہند بھرپور مظاہرہ کرنا آو. کے بعد
हिंदुस्तानी आइन हम सीमा सुरक्षा बल सीमा सशस्त्र की क़यादत खुशी दामद करते हुए मंच से गुजरते हुए जिला के सरे आगे बढ़ते हुए सुख में हर हालत में हमारे भारत में हम अपने देश की उसके बाद एसएसपी का दस्ता जिसकी अगुवाई एसआई मनोज कुमार कर रहे हैं और उसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल पटना, उसके बाद एसएसबी का जिसकी अगुवाई एसआई प्रवीण कुमार कर रहे हैं गुजरते हुए। इसके बाद पाइनियर से रुफुल हसन अपने दस्ते की अगुवाई करते हुए इस वक्त चबूतरे के पास से गुजरे और बुलाकर जीडीसी पटन और एचएस वो यहाँ पर मंच से गुजरते हुए जिसकी अगुवाई मुशर्रफ मजीद करते हैं। प्रसाद तिवारी आपके ठीक पीछे जम्मू कश्मीर एक्सिक्यूटिव मंच के सामने राष्ट्रीय ध्वज को सल्यूट करते हुए आपके ठीक पीछे यहाँ पे तीसरा कॉन्टिजेंट और सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही आने वाले गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं और ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मुझे यहाँ पे जोम सोपकन जिले हेडक्वार्टरन पे ये आज फुल ड्रेस रिहर्सल तकरीबन यून सांझ कर आव तत सपज सारवी खुद बड़ तकरीब मौलाना आजाद स्टेडियमस मज यथ मज सूबाई कमिश्नर जोम तो इंतजामी क्यों दोमो अफसरों तो एहलकारों अलाव फनकारों तलब इलमो तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौके पे ये सूबाई कमिश्नर जोम मार्च पास्टस पे सलामी रट तत फनकारों तो तलब इलमो तरफ रंगारंग प्रोग्राम त पेश करना आमद ये जन सोबकन दोमन जिलन यमन मज कुठवा रियासी सांबा डोडा किश्तवाड़ राजौरी पुंछ तो उधमपुरस मज आज फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोग्रामन हुंद सांझ करना आव यमन मज इंतजामी क्यों अफसरों अलाव फनकारों तलब इलमो तो मुकामी लूको शिरकत कर। कौमी झंडे को सलामी देते हुए अपने साहिब मौसूफ की नजरों का बेहतरीन मरकज बने हुए हैं और इनका मुआयना भी किया जा रहा है, इनके जज्बे को तकवीत को सलाम भी दी जा रही है। एसएस सलाम सुडकोट अमालियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के बच्चे और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ जैसे गुजरती हुई चेतन प्रकाश मीना सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर सुशांत सिंह मेहताब हुसैन क़यादत कर रहे देसी कैडेटों इस कुरैशी की क़यादत में मंच के सामने से गुजरती हुई नेशनल मंजीत सिंह मेमोरियल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ आमिर शकील ये दूसरी टुकड़ी सिंह और सम्मानित नागरिकगण, आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत के संवैधानिक मूल्यों, भारत की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की हम हमेशा कोशिश करते रहे। पतमन कैंचन हफ्तन दौरान ये जम्मू कश्मीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज जंगलन मज नार वारदात पेश इन सत अत कौमी सरमायस सठी नुकसान सपुद तत वन कह काल ब्रोह गुलमर्गी हिंदिस कावनार इलाकस मज नार वारदात पेश आमज तो यह वाक़ पेश इन सती फायर सर्विस महकम के एहलकारों महकमे जंगलात के एहलकारों तो मुकामी लूकों तरफ नारस पे काबू प्रावन बापत कोशिश करना आमद या दौरान नारस पे काबू प्रावन आव ये जन मुतलिक महकम के जिम्मेदारों तरफ वन आज बर वक्त कार्रवाई सत बोड़ नुकसान टालना आमुत तय पाओ चतस पतमन कैंचन हफ्तन दौरान जम्मू कश्मीर हिंदन जंगलन मज नार वारदात पेश इन सत कौमी सरमायस बड़िस पैमानस पे
نقصان سپدمت یم سۭتۍ نہ صرف محکمہ جنگلات بلکہ عام لوکن مز تہ تشویش پٲدٕ چھُ سپدمت یپٲرۍ متعلقہ محکمہ کیو ذمہ دارو طرف عام لوکن وننہٕ آمت زِ خۄشک موسم مد نظر تھٲوِتھ گژھِ मैं जब गुलमर्ग से नीचे आ रहा था कावनाड के नज़दीक, यहाँ पे जंगल में जो आग लगी हुई थी, बड़ी ज़बरदस्त आग लगी हुई थी, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए थे जो आग को आके काबू कर रहे थे, मगर उनके हाथों से काबू नहीं हो रही थी। मगर उसी टाइम लोगों ने फ़ोन पुलिस स्टेशन गुलमर्ग में किया है और आप यकीन नहीं करोगे कि वो हमें समझ नहीं आ रहा वो लोग यहाँ पे कैसे फौरी तौर पहुँचे, उन्होंने जो जंगल देख रहे हो उस जंगल को बचाया है। मगर ये बदकिस्मती जो हमारी आप खुशक साली यहाँ पे देख रहे हो बर्फ ना होने का जो ये है, ये एक एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे बर्फ नहीं हुए, पता नहीं ऐसे ऐसे कारण जो होंगे वो बहुत सारे होंगे। ये इस वक्त सिर्फ इसी चीज़ में लगे हैं। हमारे जो वाइस सर्विस वाले हैं इन्होंने कितनी मेहनत करके गुलमर्ग पुलिस स्टेशन यहाँ पे फौरी तौर हमें समझ नहीं आ रहा है वो कैसे यहाँ पहुँचे हैं। वो जैसे जल्दी जल्दी यहाँ पे आके और इस आग पे काबू दिया है, अदरवाइज मुझे लगता है सारी आग ने यहाँ पे सारा जंगल को लिपेट लिया होता है। आज आप देख रहे हो कि खुशक साली यहाँ पे हो रही है, बर्फ कम हो रही है, जिसकी वजह से ये मुसीबतें जो हम पे कुदरती हो रही हैं। तो और हर एक आदमी को चाहिए, चाहे वो कोई सिगरेट पीने वाला हो, चाहे कोई भी हो, उसको जंगल में जब वो सिगरेट पीने के लिए माचिस वगैरह जलाता है, उसको चाहिए सिगरेट पी के, सिगरेट को जला के फिर माचिस को वहाँ पे उस तीली को बचाए। अदरवाइज अगर खुदा ना करे कि आज ऐसा मौसम है कि यहाँ पे जो आग लग जाएगी पूरे जंगल को अपनी लिपेट में ले लेगी। और हमने एक फिर से पब्लिक की तरफ से, खासकर गुलमर्ग पब्लिक की तरफ से, अपने पुलिस स्टेशन गुलमर्ग और फायर सर्विस गुलमर्ग कि मैं बहुत ज़बरदस्त ये मतलब तारीफ जितनी उनकी करें वो कम है कि उन्होंने फौरी तौर आके यहाँ पे जो है इस चीज़ को। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ। तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। समाजी बहबूद महकम तरफ आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगरस मज नेशनल गर्ल चाइल्ड दोहस हवाले तकरीब हूं संस करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों हायर सेकेंडरी हंदो अहदारों अलाव तलिबातों तो दोयमो जी इज्जत शहरियों शिरकत कर। अत मौकस पे ये कोरी हज अहमियत गशरान वन आव ज पायदार तो मजबूत मुस्तकबिल तैयार करने बापत जरूरी ज कोरी ये बुनियादी हक फराहम करने तज जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जीतन प्रोग्रामन हिंद मुनक़द करने सच तिम मनफी सोच तब्दील करनस मज ते आसानी सपदन यम जन कोरी हिंदिस दुनियास मज जिनस पे शर्मिंदगी महसूस करन। जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक फैमिली लेवल तक एक ब्रिंगिंग आती है जिसमें पीयर ग्रुप्स आते हैं। आज का जो ये आज का दिन है 24 जनवरी हर साल 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। ये दिन हमें उजागर करता है, याद दहानी करती है गर्ल्स के अचीवमेंट, उनके अचीवमेंट क्या रहे या उनकी अगर और अचीवमेंट करने की ज़रूरत है क्या क्या वो है, ताकि उस पर हम अमल करें ताकि बेटों और बेटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, न किसी भी हुकूक के तय कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। क्योंकि अगर हम सेंसस 2011 की बात करेंगे तब तकरीबन 10% गैप रहा है लिटरेसी में या CSR चाइल्ड सेक्स रेशो वो भी कम था, लेकिन इन 10 सालों में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है। आजकल हम अबव नेशनल एवरेज है। नेशनल गर्ल चाइल्ड दो किस मौके पर आज राजौरी मज इंतजामिया तरफ तकरीब संज करना आमुत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरिस अलाव दोमो जिम्मेदारों तो मुख्तलिफ शोबन सत वाबस्त कोरियो तो इज्जत शहरियों शिरकत कर। अत मौके पर समाजस मज कोरी हज अहमियत गशरान आय तत मुख्तलिफ शोबन मज बेहतरीन कारकर्दगी हावन वाजन कोरिन हज हौसला अफजाई कर आमज। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव ज पायदार समाज तैयार करने बापत जरूरी ज कोरी हज परवरिश हुंद यी खास ख्याल थवन। यपर अत मौके पे तालिब इल्मों तरफ रंगारंग प्रोग्राम तो पेश करने आमद। कुछ लोग बहुत ही बड़ी पोस्ट खेल कर रही है और हर एक खंडन के लिए ये एक मार्गदर्शक है, इनकी तरह हमें बनना है। और थेरेप्यूटिक पब्लिशर्स की क्वालिफाई किया था PhD में बजाय गए किया हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में 2008 में
और इसका बेसिक मकसद था गर्ल चाइल्ड के प्रति होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करना और अवेयरनेस जनरेट करना कि हम लोग किस तरीके से बच्चों की हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, उनकी न्यूट्रिशन के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट जो है इसी जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट रजौरी में भी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ बड़े सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स भी आए हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्कीम्स जो भी गर्ल चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स इनके पास हैं, किस तरीके से उनकी बहबूदी के लिए काम किया जा सकता है, इन्फेंटिसाइड को रोका जा सकता है, उनके लिए जो भी कार्यक्रम है जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरीके से सुकन्या सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना या फिर मातृ वंदना योजना या फिर स्टेट मैरिटल असिस्टेंस प्रोग्राम है, न्यूट्रिशन के प्रोग्राम है, पोषण चल रहा है यहाँ पर, परीक्षा यहाँ पर हमने खोला हुआ है स्कूल को। नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये निमो ब्याखा तिजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। डाक बंगल सोबस में आज इंतजामिया तरफ अवामी दरबार साज करना आमुत यत मज इंतजामी के जिम्मेदारों अवामी नुमाइंदों तो मुकमी लूको शिरकत कर। अत मौके पर ये लूकों तरफ कई मसल वतलावन आई तथ जिम्मेदारों तरफ लूकन यकीन दिन आमुत तीन तरफ वतलावन आमुत मसल अंजरावनस हवालन संजीद कदम तुलन युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। जो मसाइल या इश्यूज रेज किए गए वो दो तीन तरीके से या दो तीन कैटेगरी में मैं कहूँगा। एक ऐसे मसाइल हैं जो शायद जैसे आपने कहा 10 साल से 15 साल से चल रहे हैं, जो शायद पूरा ही नहीं हो सकते या पूरा होने में टाइम लगेगा। जैसे कहा गया कि साहब मुझे हर ब्लॉक में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चाहिए, कहा गया कि साहब हर ब्लॉक में मुझे एडिशनल डीसी चाहिए, कहा गया कि मुझे डिग्री कॉलेज हर जगह चाहिए, कहा गया कि साहब मुझे किसी भी सब डिवीजन को या तहसील को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दीजिए। अब ये सारे थोड़े से देखो उसका फर्क शायद अगर वो सही भी हो या जायज़ भी हो, बट हर जगह पे हर तहसील में हर ब्लॉक पे ज़िले नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी लेवल के डिसीजन है या थोड़ा सा ज़्यादा सोचने का है वो पूरे नहीं होंगे, चाहे 10 साल हो जाए चाहे 20 साल हो जाए। ज़रूरत इस बात की है कि जो सही मसाइल हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से जो ज़राए हैं, हमारे रिसोर्सेज है, उनके मद्देनज़र एक एक करके हम आगे ले जाएं। आज भी जैसे बात हुई, कुछ चीज़ें हमें बिना पैसे के, बिना ज़राए के, थोड़ा सा ज़िला इंतज़ामिया ध्यान दें, थोड़ा सा हम ध्यान दें, थोड़ा सा पब्लिक हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं लैंग्वेज कर रहे हैं, आधा पौना पैसा उसमें लग चुका है, 10-10 साल से नहीं हो रहे हैं। डी साहब से बात हुई, हाँ इंजीनियरिंग विंग से बात हुई, उसको हम अगले आने वाले समय में 3-4 महीने में आगे। जनूबी कशीर हिंदिस कारमल त्रालस में आज महकमे जंगलात तरफ आउटरीच प्रोग्राम तहत तकरीब हुंद सांज करना आमुत यथ मज DFO अवंतीपोरा, फॉरेस्ट रेंज अफसर त्राल तो महकम के दोमियो जिम्मेदारों तो एहलकारों अलाव मुकमी लूको शिरकत कर। अत मौके पर ये कईयान अयालन मज कश्मीर नोटिस बगरन आई तथ जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जंगलन नजदीक रोजन वालन लूकन बुनियादी हक फराहम करने बापत यथन प्रोग्रामन हुंद सांज करने यथ दौरान तिमन मज यम नोटिस बगरन यवान। आज मैं यहाँ कारमुला में आया हूँ, लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन थी। ये एक आउटरीच प्रोग्राम था जो हम 26 जनवरी के सिलसिले में कर रहे हैं। हर गांव में जा रहे हैं, हर पंचायत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुँच रहा है। इस सिलसिले में यहाँ के लोगों की, हमारी एक गरीब तबके की डिमांड थी मुसलसल कि ये बस्कीन जंगल है, इनका हक बनता है जंगल पे, तो इनके लिए कुछ कश्मीर नोटिस जो अप्रूव हुई थी तो वो आज हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए, जो इनको रेपियर वगैरह के लिए जो इनका हक है, जो जंगल पे रहने वाले डेवलपर, दिस फॉरेस्ट डेवलपर्स हैव राइट ऑन दिस। तो ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमने कोशिश की कि हम अपने लोगों के पास पहुंचे और इनको इससे नवाजे जो इनका हक है। तो नाजरीन खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।